As you know, continuously I post video, and today is very strange thing among us that one of my students, it's very privilege to me that he could be able to clear a written examination of Navy SSR. Okay, whatever. And it is very lucky and fortunate that he could be able to secure a post out of 1100. About there was 1150 or 1100 seats, and most of his friends came to know that he does not talk about, and they don't talk about with happiness. They tried to show some kinds of jealousness. Okay, so through this video I would like to make aware of that what is the what vital role plays English in our life, and he is going to explain before you that what is the importance of all the subjects. With the help of those, he could be able to secure a seat in a Navy SSR. Okay, and in future maybe he is going to clear final selection, but also I along with his family member pray that if Chotu achieve this post, it will be good, okay, for him. And if he does not get this post, it would be the best for him, because he is not for Navy, he is for income tax officer. So it happens good, it does not happen, it would be best. Okay, so now I don't want to say anything more. Everything is going to explain Chotu one by one with bilingually, okay, English and Hindi. Okay, so Chotu starts with your introduction. And Hindi English दोनों का प्रयोग कर सकते हो. Hi everyone, my name is Chotu Kumar. I passed my 10th in 2018, and after that I passed 12th examination in 2020. After that I was going to preparing for government job, and first of all I was going to preparing for Air Force examination, and one time I got rejected from interview from Air Force from Bihar, and after that I had been trying, and finally today I am got selected for phase 2 in Indian Navy SSR examination, and my physical examination and basic medical examination is on the 8th April in Kolkata. Thanks. चलो clapping करो. Chotu, as you qualified, okay, as you qualified in Navy SSR, okay. So I want to know your journey. How did you reach to this destination here, and what role plays more and most vital role in getting secure a place in Navy, Air Force? Army is little bit different, okay, but Navy and Air Force maybe adjoined to each other. Yes. Okay, this is why. So I want to know your brief journey, because we have no enough time, and you have to take bilingually, because they all are not more and much more efficient to take you very easily. Okay, so you have to take bilingually. Okay. So if you need, then you can use marker. Yes, sir. Actually, sir, starting time में जब हम 12th पास आउट हुए थे 2020 में, ओके, तो जो मेरे एक दो भैया हैं जो गांव के बगल के हैं, तो वो लोग इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे उस टाइम, और एक दो का उस टाइम जॉब लगा था, तो वो लोग हमने क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो उनसे ही हम आइडिया लेते थे. अच्छा, इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि हिंदी में तुम लोग? दोनों. Okay, so just I wanted to suggest it from them, and they suggested me, if you want to qualify Air Force Navy examination, you will have to your put efforts, and they said me that if you want to crack Air Force examination, there will be a subject that is English, and they play a very vital role in your final selection. And from that time I am preparing for Air Force, and I am focusing most of time on English subject, and actually I am good student during my 12th class preparing, and I was good at mathematics and physics, but I was not proficient in English. Okay, sir. After that, actually I went to Allahabad for preparing for this examination, but I don't got such good results from there. After that I returned over there,
and I am preparing for You did at my everything house. self-study? Yes, sir. And actually I take some help from online classes like YouTube and some applications. And today I qualify maybe SSR examination, and actually how did you select it? Yes, sir. Just My because we physical, have 20 to 30 minutes. yes, yes. So how did you select it? How did you select it? Okay. First of all, I'm appear in Air Force examination in 2020, and that month about October, OCTO, October, and that time I was not selected because of that time my English is very poor. Actually, I gained good marks in mathematics and physics that time, but I was poor at English, and Air Force don't want to select those students who are poor in English. If you are poor, if you are some poor in physics and mathematics, you are eligible for selecting in Air Force. But if you are not, the final merit list could not be released without English. Yes, sir. And actually, my inspiration is not good over there, so they rejected me. And after that, actually, if I talking about Navy, this is my first attempt, because from that time Navy released vacancy, but they selected those students who got more than 85 marks in board examination in 12th. Actually, I also got 86% marks in 12th board examination, but unfortunately I was not shortlisted by them. Yes, sir. And actually, because my marks is less than 2, you can say. Okay, sir. So, and actually I am appearing in Air Force examination 2 or 3 times, in which one times my result is not released because of Agniveer scheme. After that, I failed in 2 examination in Air Force, and finally last time I appeared in Navy examination, and fortunately I selected for Navy SSR examination. If I talk about कुछ problem होगा तो नहीं कुछ भी लिया करना. If you have any problem, you can ask me undoubtedly. Okay. चलो कुछ सब्जेक्ट जो है SSR का और जो एयर फोर्स नेवी में सिलेक्शन का प्रोसेस और ये सब जो है सब्जेक्ट. Okay, now I am going to talk about what is the entire selection process of Navy SSR and Air Force. ये तुमने कैसे क्वालिफाई किया ये बता दो. Yes, okay sir. Okay. जो देखिए मेरा जो स्ट्रेंथ था सिलेक्शन का, वो फर्स्ट टाइम जो हम गए थे ना, तो मेरा मतलब इसलिए मुझ में कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे मैथ फिजिक्स मतलब उतना भी अच्छा नॉलेज नहीं था, लेकिन था, और हम है ना उतना मतलब मेहनती थे, मतलब उतना तेज नहीं थे लेकिन मेहनती थे, और उत्सुक हमेशा क्यूरियस रहते थे किसी चीज़ के प्रति। लेकिन उस टाइम मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश मतलब पढ़ना चालू किया, तो फर्स्ट टाइम वोकैबुलरी पढ़ा, उसके बाद ग्रामर पढ़ा, उसके बाद भी फर्स्ट टाइम उतना अच्छा रिजल्ट रहा नहीं, उसके बाद फेल हो गए, फिर से ट्राई किया, उसके बाद स्पोकन के लिए गए, क्योंकि देखिए जब आपको कोई भी चीज़ का जो लैंग्वेज का आप अगर उसके इन्वायरमेंट सर्कमस्टांसेस में अगर इंडल्ज यानी घुल मिल जाते हैं तो वो सिलेबस आपको मतलब इजी लगेगा। ओके, तो इंग्लिश मुझे नहीं बोलना आता था उतना अच्छा से, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब रटने वाला चीज़ हम रट लेते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मुझे था कि हर हाल में आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद ज्वाइन किया, वहाँ पे कोई उतना अच्छा गाइडेंस मिला नहीं, और वो अननोन शहर था मेरे लिए उस टाइम, मतलब हम वो मतलब 17 या 16 साल के रहे, 17 साल के रहे, उतना दिमाग 28 साल का नहीं हुआ है, 19 साल का है, मतलब अभी 19 का हो गए। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए निराला सर को प्रीफर किया, एंड दोस्तों को हाथ फैला जाएगा। नो सर, and I don't want to forget that Nirala sir provided me his entire class for me. Chotu, you can speak, you have to speak English, you have a good quality, and you are capable to speak English, so please try. And अगर हम इंग्लिश बोलने की बात करें, निराला सर का मतलब बहुत योगदान है, क्योंकि अपना पूरा क्लास खर्च कर देते थे मेरे ऊपर, और मैं भी उतना मेहनत करके आता था। फाइनली मैं इंग्लिश जब सीख गया तो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ गया। देखिए आपको एयरफोर्स नेवी में जाना है तो इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश के लिए आप स्पोकन भी कीजिए क्योंकि इंटरव्यू होता है, और स्पोकन सीख जाइएगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा,
होता क्या है कि वहाँ जब एयरफोर्स में जाइएगा ना तो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, ओके, एक्स ग्रुप के लिए। तो उसमें 20 इंग्लिश पूछता है, 25 फिजिक्स और 25 मैथ। इसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ जाता है, जैसे बोर्ड में होता है ना, जो 30 नंबर का अगर किसी सब्जेक्ट में तो पास करके समझाओ ना, ठीक है, मैथ इंग्लिश, ठीक है, ये जो भी होगा इस टाइप में समझाओ। तो सबसे पहले हम नेवी का समझा दिया, एयरफोर्स का दोनों कर दो ना, कमाई दोनों हो जाएगा। दोनों का बता देते हैं। जैसे देखिए नेवी में SSR के लिए बता रहे हैं और एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए, यानी टेक्निकल +2 लेवल के। तुम अपने एक्सप्लेन करो जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। जी सर, SSR काम कर लेते हैं SSR के, क्योंकि नहीं सर, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं एयरफोर्स के प्रति उनका इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है। अंग्रेजी ये नहीं करता नहीं, हम सिखाएंगे, तेरा तू लाइन अंग्रेजी जानता है तो दिखाता। ये क्या लिखे, जैसे देखो रीजनिंग मैथ, देखो सबसे नहीं सर, मेजर सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स है। देखिए नेवी SSR में होता है ना, ऐसे तो इसमें साइंस आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, फिजिक्स पूछता है। 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, जिसमें से 16 या 17 क्वेश्चन फिजिक्स से ही रहता है, ठीक। उसके बाद हो गया मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो +2 लेवल पर होता है, ठीक। 12th प्लस जैसे कैलकुलस से आपका क्वेश्चन पूछेगा, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सो मैनी थिंग्स, ओके। नाम सुना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ओके। उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश में जो ग्रामर के रूल कॉन्सेप्ट होते हैं, और उससे ज्यादा वोकैबुलरी का सेक्शन, क्योंकि आपको 2 इंटू 2 साइनोनिम्स, उसके बाद 2 फ्रेजल वर्ब, 1-2 इडियम पूछ, यानी 10 नंबर का वोकैबुलरी पूछ देगा, 4-5 नंबर का पैसेज पूछ देगा, 15 हो गया। 8-10 को ग्रामर पूछेगा तो थोड़ा मतलब रहता है उतना कि आपसे मिस्टेक हो जाएगा डेफिनेटली, मतलब हो जाएगा, कुछ सही भी हो जाएगा लेकिन कुछ गलत, ओवरऑल वोकैब पे आना, क्योंकि वो पूरा ग्रामर डीपली एक वास्ट सेक्टर है, तो उसमें इंटरफेयर ज्यादा करने से अच्छा है कि हम लोग इधर मेहनत कर लेते हैं, ओके। और जीके जीएस का आता है, इसमें कितना मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। इसमें 4-5 नॉर्मल मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 मतलब जनरल मैथ्स के, जैसे परसेंटेज, एवरेज या सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, और उसके बाद जीके रहते हैं कुछ करेंट अफेयर। तो यही मतलब इसी में मेरा मतलब फेज 2 के लिए सिलेक्शन हुआ, ओके। और मेरा PFT है कोलकाता को 8 तारीख को। अब इसमें क्वेश्चन कुछ पूछना है, जिसका एयरफोर्स नेवी का सपना है, पूछना है 200 पैसे कटअप इसमें कितना चाहिए, मतलब मार्क्स कितना आना चाहिए। अच्छा देखिए अच्छा, वो पिछला कहानी इसका भाई साहब क्या था कि बोर्ड को चाहिए था 34 या 35 नंबर, भाई साहब ले आए 39 पॉइंट समथिंग, 28 नंबर था, कितना 28, एयरफोर्स में 28 चाहिए था। अरे तुमको तो 38 के करीब था ना। जी सर। देखो 28 था, हम तो समय कम बोले थे, 28 बोर्ड को चाहिए था, ये ले आया कितना 38। अब क्यों रिजेक्ट हुआ ये बताएगा। अब उसमें मैं मैथमेटिक्स के कारण क्योंकि होता है ना, जैसे अब आपको जैसे देखिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन होते हैं और +2 लेवल का होता है, ठीक। उसमें मैथमेटिक्स जो होता है ना, थोड़ा मतलब जेईई जानते हैं, उससे भी सिलेबस इसका रिजेंबल, क्योंकि जेईई +2 लेवल का क्वेश्चन पूछता है कैलकुलस, तो उससे रिजेंबल कर जाता है, और थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। जिसे देखिए अर्थमेटिक मैथ आप बना सकते हैं ट्रिक बेस्ड, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से ही बनता है। जो ये मैथ है मतलब टेक्निकल मैथ की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलना होता है, तो टाइम कंज्यूम होगा ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरा मैथमेटिक्स में सेक्शनल कटअप 2 नंबर कम रह गया था, ओके। अदरवाइज में जो मेरा था नंबर वो अच्छा था, समथिंग था 37 नंबर था मेरा एयरफोर्स में पिछले बार, और कटअप कितना था 28 था। तो अगर 1-2 नंबर आया पिछले बार मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं उसका कटअप क्लियर नहीं कर। क्या क्या सुधारना है, नहीं सुधारना है, टोटल मतलब कुल जो सब्जेक्ट होता है सब सब्जेक्ट का कंबाइंड एग्जाम होता होगा। हाँ जैसे देखिए 25 नंबर का हुआ ना पूरा, कितना 4 सब्जेक्ट हो गए तो 100 नंबर का हुआ ना एग्जाम। आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर पर, ओके। अब 60 मिनट है, आपको 100 क्वेश्चन हैंडल करने हैं, तो आप ज्यादा फिजिक्स मैथ बनाइएगा तो टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। उसमें चालाकी करना होता है, इंग्लिश जो आता है आपको तुरंत बनेगा, ओके। जी अच्छा, तो आप 1 से 12 क्लास तक अंग्रेजी पढ़वे नहीं किया बिहार में? हाँ, नहीं तो मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। 10वां में सिखाया जाता है कि संस्कृत पढ़ो, अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। देखिए हम भी ना सर, इनफैक्ट मैं भी मतलब अच्छा क्या होता है उन बच्चों के लिए, ऐसा होता है ना घटना कि हम लोग को सिखाया जाता है तरीका कि अरे क्या 10वां में अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये जो है ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए क्या होगा इंग्लिश, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं?
बिल्कुल ही तो मान लो ऐसा ऐसा ट्रिक हम जानते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र महोदय टीचर लोग जो पढ़ाते बेचारा जानते हैं, तो पढ़ा करके अपना बच्चे को नंबर दिलवा देते हैं। नंबर, लेकिन आप वहाँ पे ट्रिक के बेसिस पर क्वालिफाई नहीं करिएगा। तो उसके लिए क्या करें थोड़ा? जैसे देखिए सर, आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश ना तो कोई बात नहीं, लेकिन आर डाल लीजिए। जैसे 10 तक हम इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, कोचिंग में जैसे टेंस ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट डेफिनिट लगेगा रहा, लेकिन कुछ बाद में पता चला नहीं, कुछ रूल बेस्ड होते हैं जिसके सेंस के आधार पर ही हम आंसर दे सकते हैं, तो वो सब रूल मेरा फेल हो गया। उसके बाद लेकिन देखिए हम 12th में भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं पढ़े हैं, हालांकि मार्क्स आ गया क्योंकि मेरा राइटिंग मतलब थोड़ा ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है, तो उसके बेसिस पर मार्क्स आ गया था, ओके। लेकिन उसके बाद जो मतलब वास्तव में मैं इंग्लिश का तैयारी 12th के बाद ही किया। जैसे आप लोग तो निराला सर से पढ़ रहे हैं तो बहुत आपको सपोर्ट मिला, हेल्प मिला, एंड यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम निराला। तारीफ नहीं करूंगी, सब बोलेगा अच्छा नहीं सर, ऐसा देके बुला लिया होगा आपने नहीं सर, नंबर दिखा देगा ये बच्चा। स्टेटस तो लगाए हुए था जी, स्टेटस लगाए हुए था ना। तो ये है कि आपको इंग्लिश मतलब पढ़ना चाहिए अभी से, क्योंकि देखिए आगे जाइएगा इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टरी फील्ड, पूरा में आपको इंग्लिश करना है। इंग्लिश पढ़िए आप लोग, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। और फिजिक्स में सब पढ़ता है फिजिक्स। तुम्हारा हुआ रिजल्ट क्या पूछ रहा? टोटल मार्क्स में से हाईएस्ट मार्क कितना तक जाता है? जैसे देखिए इसमें होता है ना, देखिए SSR का स्टेट वाइज कटअप जाता है, जैसे बिहार का कुछ और जा सकता है, झारखंड का कुछ और जा सकता है। तो इसमें 4 जो स्टेट है जिसमें अपना भी आता है बिहार, क्योंकि यहाँ के लड़के मेहनती होते हैं। बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तारीफ कर रहा है, हरियाणा हो गया, ओके, और एक आता है इसमें यूपी भी हो। देखिए ये 4 स्टेट का कटअप हाई जाता है, उसके नीचे ही सबका जाता है, ठीक। तो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इसमें कटअप सबसे हाई जाता है। तो हम भी बिहार से भैया यहाँ देख, बिहारी का एक सिंबल है, एजुकेशन का मतलब नौकरी, शिक्षा का मतलब नौकरी, मतलब वो लोग इसी पे मतलब हरियाणा वाले और एक जाट होते हैं वहाँ पे, कौन है तो मतलब डिफेंस के प्रति इन लोगों का बहुत जो इंक्लाइनेशन ज्यादा है, तो होगा ऑब्वियसली। वो लोग बहुत ईगर होते हैं कि डिफेंस लाइन में जाना। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाईएस्ट मार्क कितना कम से कम गया होगा पिछले? अच्छा बता देते हैं वो एग्जैक्ट। देखिए पिछले बार अभी तो चूंकि मुझे शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया, वहाँ PFT के लिए बुला दिया गया, चूंकि टाइम कम था, रिजल्ट आया था इसको, लेकिन देखिए हम बताते हैं, अगर आप 100 मार्क्स में से अगर 50 मार्क्स कर लेते हैं बिहार से 50 प्लस, यू आर मतलब सेलेक्टेड फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। तो आपको 50% प्लस मार्क्स करके आना है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए जैसे पेपर का अगर जैसे लेवल ठीक ठाक रहता है तो कटअप नीचे हो जाता है। जैसे इस बार थोड़ा ठीक ठाक पेपर था नेवी का, एयरफोर्स से भी हाई था मतलब मैथमेटिक्स, तो उसका कटअप इस बार कम गया होगा। कल रिजल्ट आएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि मैथ में 20 में 20 लड़का अटेम्प्ट कर सकता है कि नहीं? मैथ 25 पूछता है, 25 पूछता है, कर सकता है कि नहीं? इंग्लिश कर सकता है, जैसे कर सकता है, लेकिन जो सर JER के लिए प्रिपेयर कर चुका है, नहीं जैसे इंग्लिश कितना अटेम्प्ट कर सकता है? इंग्लिश तो पूरा कर सकता है। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कैसे जो बाकी इडियम, फ्रेजल वर्ब, वन सब्स्टिट्यूशन एंड इंटोसिनोन, ये सब तो दो पूछता है, पंक्चुएशन पूछता है, ग्रामर तो भैया 5 पूछा है तो 3 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, ठीक है, वो सोच करके देता है कि बच्चे गलती करेंगे। जी सर, ये चीज होता है क्योंकि ग्रामर में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, पूरा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब पूरा पढ़ना पड़ता है। सुपरफ्यूगस आता है सर, स्लैंग सुपरफ्यूगस, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब मेंस आओ क्या मेंस से बच्चा नहीं, इसमें एक ही एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल के लिए जा रहा है, उसको सही में नाम नहीं दिया ना जानेगा। अब हम तुम्हारा गारंटी लेंगे कि हम तुमको रिटर्न करवाएंगे, कब कहेगा कि सर पीछे से घोड़ा की तरह डंडा मारिए, दोनों निकलवाइए, बरोबर होगा। अब ये आगे अब इसके शरीर पे है ना। मार्किंग स्कीम क्या है? क्या मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम जैसे आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो ये भी है क्या? ये सर, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर 100 मार्क्स का, ओके, यानी प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0। अगर आप गलत कर देते हैं तो 1/4 आपको माइनस हो जाएगा, यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 आपका सही वाला कट जाएगा। तो वहाँ पे एग्जाम्पल की नहीं 5 क्वेश्चन बनाया, क्यों बनाया? ठीक है, और 4 गलत हो गया, ठीक है, इधर तुम्हारा क्या हो गया था? 4 0 1 राइट, यही ना, ठीक है, 1 राइट, ठीक है, और उसके बाद जो है तुम्हारा 0 हो जाएगा।
ये चीज़ है बात, ये गड़बड़ हो गया। आप जो लोग भी जाना चाहते हैं, बस मेरा यहाँ आने का पर्पस यही था कि मतलब जो भी क्योंकि सर हम भी इनिशियल स्टेज में थे ना, तो बहुत होता था कि कोई का एग्जाम निकला उससे आइडिया ले, पूछे कैसे कैसे करना होता है, और शायद उस टाइम अच्छा मिल जाएगा, शायद पिछले बार मतलब इससे पहले एग्जाम क्लियर हो सकता था मेरा। हाँ यार, तो सुना हो जाता हाँ, there is one thing, a speciality in my side. Okay, I do not praise myself, appreciate myself, but I know the exact I have the great experience of how to improve your English. The way which I suggest you, one of the finest way to improve your English. Chotu, when you came to me first time, you met me first time, I talked with you. Okay, that time I do not pressurize, I do not force you to go and study grammar. Did I say this? No. No. I knew about his potential. I know I came to know about his strength. Thereafter, I suggested him, Chotu, if you want to succeed in your life, please do such things. And he followed that way. He followed that way and become mature in English. He has the capacity to solve out 80 out of 20. Okay, 45 out of 50 questions of SSC. And almost you coach all the coaching you visit, you will go over there, noun, pronoun, what is word, what is sentence, these kinds of the things you will get over there. And these are not going to help you alone. The things which are going to help a smart techniques and what kinds of the things are going to be asked in the final examination, and you need some previous year questions practice. And if you have done it in abundant quantity, there is no one who is going to stop you to clear the examination. Okay, so there is a fact. मैं तुम्हें भी नहीं करता हूँ, इसे भी नहीं कहता। वो लोग फर्स्ट टाइम कभी आया था, इसको कभी नहीं बोला क्या था कि चलो आकर के टेंस ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है, इस टाइप का चीज। तो चलो और किसी को पूछना हो गया सबका एयरफोर्स में भी। सर इजी जॉब 4 साल में आप 40% को परमानेंट किया जाएगा। एक +% हो सकता है छोटू, जिसका अगर अंग्रेजी बढ़िया होगा उसमें भी उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिले, क्योंकि वहाँ का जो है ना, जो भी आपको पढ़ना ट्रेनिंग के दौरान पढ़ना पड़ता है, नेवी और एयरफोर्स का सर दो फैक्ट है कि ज्यादातर इसको विदेश का दौरा भी ट्रेनिंग के लिए मिलता है। तो वहाँ पे आपका जो भी होगा वो इंग्लिश में पढ़ाई, जिसका इंग्लिश बेटर है वो मेबी वो परमानेंट हो जाए। नेवी का मंथली इनकम नहीं, जो पहले जो अग्निवीर स्कीम के बाद थोड़ा सा बदल गया डाटा इधर उधर, लेकिन पहले था जो स्टार्टिंग टाइम में 30 के अराउंड मिलता था। कितना बढ़िया है, हिंद महासागर में जाएगा और जो है डुबकी लगाएगा, क्या है सब महीने मिलेगा ही मिलेगा। ये सर 15-20 साल का जॉब है, उसके बाद आइए आप पेंशन लीजिए, डिफेंस यही है, ठीक पेंशन। मतलब एयरफोर्स ने भी और एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, भैया आए तो बोले कि अंग्रेजी सिखा, अंग्रेजी से भागता है, इन लड़कियों को समझाओ, ये सब बोलते हैं सर मेरे को हाउस वाइफ बनना, सब ये तो सबको भड़का देती है, यार ना बोलिए अंग्रेजी, आज क्लास बंद हो, ये क्या बोलेंगे आज क्लास बंद हो, उधर लड़का लोग का एक स्टेटमेंट आएगा सर 12th पास करवा दीजिए ना, बाकी तो जो है लगा होता है क्लास में, तो ये लोग भी चाहते होंगे कि अच्छा हो, लेकिन इसके साथ अपना अभी से फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में तो सोचा कीजिए। चलो इंग्लिश में 5 मिनट मोटिवेट कर दो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, लोग नहीं पूछेगा निकम्मा, मोटिवेट कर दो। Now see, he is going to motivate you till 5 to 10 minutes in English. If you feel something not getting his points of what he wants to suggest you, and you are feeling some boringness, please don't be bored, because the things which you are not going to get eagerly, it is going to trouble entire your life. There is no one who can escape from it. English is not the only language in this modern era. It has become water, air, even food, which is very and one of the most important necessary material for human being. Okay, so you can't ignore it. So Chotu, please make understand and give a small speech on the importance of English and how they improve. Okay. First of all, I want to say about how to improve your English speaking, and you can say communications skills through English language. Okay, so first of all, if you want to speak English, don't think that I have to prepare for grammatical structure, grammatical rules concept. Okay, if you want to speak English,
you will have to command some basic vocabulary. Like if you have junior books, okay, junior translation books, there are lots of very important vocabulary that is given over there. Then you can cover them from there, okay. And in beginning time, don't think that I have to cram entire vocabulary, otherwise I cannot speak English, okay. If you want to speak English, it's simple that first of all you have to remind your vocabulary gradually. Like first day you can cram 5 or 10 vocabulary. After that you can remind and memorize 10 or 12 vocabulary, and so many things you will have to happen in flowing concept, and you can say anything, okay. And main thing about speaking English, that if you want to speak English, you have to indulge in English environment and circumstances. Wherever you feel that there is an environment of English, definitely you have to join over there and you have to practice over there. And one more thing about spoken English, if you want to improve your spoken English in haste, then you will have to go to you will have to spend your time, and you will have to spend your most of time in circumstances of English language. You cannot indulge in Hindi language substances. If you are indulging in Hindi circumstances and environment, and if you think I will speak English after 2 years, I will speak English after 3 years, it is entirely ridiculous. If you want to speak English, you have to start it from now, and don't let as you know, you are now you are in 12th class, and 12th is a very standard class, and you have to aware all the things, okay. And you have to make conscious yourself about English, and after that I want to say some lines about importance of English, okay. First of all, first importance of English is you all know that there are lots of government school in our area, and their education is free, but most of people don't prefer government school. Why? This is the only reason, that they want to educate their children from English language, and you can say English medium, okay. So they also abstain from Hindi medium schools, and they take expenditure of their children, okay. And in anyhow they want to educate their children in English medium school from Indian English medium school, okay. So you can think that, and obviously if you all are grow up, when you will become father, what will you think, that my children should be educated from Hindi medium? Not, absolutely not. You only think that this is the modern era, and there is the only command of English language. So you also suggested, you also, even I can say, you also force your children to educate them from English medium school. So why you are not? If you don't know how to read English, how to speak English, then how will you force your children in coming days that you will have to speak English? If you know about English spoken and grammatical many things, if you know English language, then you can suggest better your children, okay, that you have to educate from English medium schools. And if I am going to talk about government job, you can imagine that there are many vacancies that is released in India, okay, like SSC, banking, and defense, and some state PCS examination, Daroga and Bihar Police Group D, many things, okay. So you can imagine that all
all the government job that provided you handsome salary and handsome accommodation, handsome circumstances, then if you want to join those sector, you will have to improve your English, because and you know SSC year by year release their vacancy, and if you want to get selection in SSC, you will have to improve your English. Without English you cannot qualify their examination, and neither you qualify their examination nor you qualify their interview. So you will have to improve your English. This is the importance of English. समझा कौन बोल रहे? बहुत सब थोड़ा मोड़ा बिहार बोर्ड वाला जो अपना लक्षण नहीं है पेट दुख रहा है, खाली पेट दर्द जाए जो है। चलो ठीक है, तो जैसा जो भी चला का जर्नी रहा, यात्रा बताने की कोशिश की, सुधारिए अंग्रेजी, ठीक है। बाकी जो है बताएंगे कि हम लोग तो जैसे जो समझाते हैं समझने करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी भी बहुत बच्चा को नोटिस किया कि जो है अपना मगन है अपने आप में, तो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, अरे तुम भी करो, तुम्हें भी जो है यहाँ आने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इंग्लिश, आप इम्प्रूव करिए, जो आपको जो है क्या बोलता है आगे जो स्पोर्ट करने में बेटर रहेगा। अब ये नहीं कहता हूँ आप मैथ नहीं जानते हो, लेकिन मैथ का वो एंगल और ट्रेंगल देगा ना, तो को 90 खींचेगा तो पता चलेगा कि 180 खींचना था, ठीक है। आप उसी में खा गया 2 मिनट, ठीक है। एक सेकंड एक कंपटीशन में मायने रखता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से कह सके कि गांव का लड़का जो है क्वालिफाई कर सकता है, तो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गांव समाज में क्या होता है, थोड़ा सा पटोरी से ही डूला है, रीजनिंग मैथ जीके टीचर पढ़ा रहा है, आप तमाम टीचरों से आग्रह है कि इससे दूर क्यों रखते हैं, इससे दूर मत रखिए, इससे दूर मत रखिए, इसको भी पढ़ने के लिए कहिए। इसका एक मेन फंडा है, छोटू आई थिंक एम आई राइट और रॉन्ग, स्पोकन एंड प्रैक्टिस कर लो, वो जो बुक बताया, ठीक है, एमबी वाला मोर देन सफिशिएंट है इंग्लिश पे कमांड करने के लिए। अब इस पे क्वेश्चन करेगा सर मेरे को ग्रामर नहीं आता, कोई बात नहीं, बाबू वहाँ लगा हुआ एक वर्ड मिल गया किसी कॉमन एरर में, ठीक है, सिखाएगा, ठीक है। कि लोग से अगर लोग को डील करना है, ठीक है, तो विथ लगा देंगे, और व्यापार के पर्पज से चलेंगे तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। वर्ड में मिल जाएगा कि प्राउड लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है। अगर क्वेश्चन में सीखेंगे कि ईच आ गया, ये ईच ऑफ आ गया, ठीक है, एवरी आ गया, और कुछ भी लगा होगा तो उसका जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, ऑटोमेटिकली जो है कमांड हो जाता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है। स्पोकन पैसे समझने में पड़ेगा, प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड का जो है वोकेब जैसे, ठीक है, आपको एंटोनिम सिनोनिम से वर्ड मीनिंग कमांड होगा, फ्रेजल वर्ड, मीडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सबसे जो है मदद मिलता है। तो स्पोकन और प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्पोकन यही होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, कुछ सीख मिलता है तो थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ दोस्तों के लिए कहना है जो अच्छे और बुरे भावना है, क्या कहना नहीं जी, हम यही बोलना चाहेंगे, जो भी लोग मतलब जो चाहते हैं कि डिफेंस में जॉब ले, अब तरीका निकाल लिया तो तुम्हारे कुछ दोस्तों का कमेंट है कि अच्छा देख ले ना फाइनल लेता है, तो दोस्ती का मतलब ये हुआ, दोस्ती का मतलब ये तो बधाई देना चाहिए ना, ठीक है। क्या है वैसे दोस्तों की कहना, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी दे हैव टू हैप्पी बिकॉज़ दे आर हिंदी बोलो, थोड़ा सा गलिया आएगा, हिंदी बोलो। नहीं सर, जैसे सर मेरा सेक्टर था, इंग्लिश पढ़ना था मुझे, तो मैंने पढ़ा, जो भी मेरे दोस्त हैं वो स्किप किए तो उनका शायद नहीं निकला मेरा। तो एक दोस्त का तुमने एग्जाम्पल लिया था कि ओवरऑल 20 लाया, इंग्लिश में 2 लाया, बोले, ठीक है। तो चलिए अंग्रेजी सुधारने में बहुत बाकी है कि सिलेक्ट हुआ, ठीक है। थैंक्स वॉच फॉर माय वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।